are here at Regional Research Institute of Unani Medicines, and we have come here to listen to the contribution of the doctors here who are into research and development from medicinal plants, and who have prepared many drugs in it, and who have also used them practically for the curing of the many diseases. And they will show us, we have a tour also here, but first we will listen to the lectures of our reputed faculty of this institute. We are very thankful that they provided us the time and expertise for exposure visit of our trainees from SCOST. It's actually, sir, the Advanced Management Development Program. It comes under MSME, Micro, Medium and Small Enterprises, Ministry of MSME, and this is sponsored by them. And the basic theme of the program was what are the innovations in medicinal and aromatic plants and how they can take it as a potential business venture. So we have covered almost all the facets of this program, that what are the possibilities of having the business in medicinal and aromatic plants, and going to the Unani Ayush use of medicinal plants in them is one of the important facets of this program. So I welcome you all to this program. The first lecture is of Hakim Muhammad Afsahul Kalam sir, and he will provide you some details regarding the use of these medicines in Unani medicine. Sir is a renowned Hakim, we call him in the language of Ayush, that he has been doing research in use of medicinal plants in Unani medicines. So sir is a BUMS doctor, and he has done also MD in Department of Emul Adviya. I am extremely sorry if pharmacology. Yes, that is pharmacology, if I cannot pronounce the words properly. And he has done the evaluation of various, you can say, commodities. He will himself tell what he has done and how they had been beneficial. He works as a research officer Unani in this institute. So I hand over the mic to him. Thank you. I am Hakim Muhammad Afsahul Kalam. My lecture is first I want to say what is Unani. Unani medicine is one of the oldest system of traditional medicines practiced in different parts of the world, especially in Indian subcontinent and Arab countries. What is Unani means the word come from? The name Unani is derived from Greek word Ionian, which means the knowledge of state of human body in health and illness. Disease condition में और healthy condition में जो बॉडी की हालत है उसकी नॉलेज कंप्लीट जो है वो यूनियन, जो वर्ड यूनानी लिया गया है यूनियन लफ्ज से, उसके माने हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन. यूनानी मेडिसिन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? It refers to a tradition of Greco-Arabic medicine which is based on the concept of humors. Humors are akhlat, also called akhlat, and temperament given by Greek physician Hippocrates, father of medicine, and Jalinus, Roman physician, also known as Galen. Further, this system was developed into an elaborated medical system by Arab physicians, Arab and Persian physicians like Ibn Sina, Zakaria Razi, Abul Qasim Zohrabi and Ibn Nafis etc. नाम आपने सुना होगा, एवेसेना के नाम से अमूमन जानते हैं, और रेजिस के नाम से एवेंजोर, जो अबुल कासिम जोहराबी हैं उनको एवेंजोर के नाम से मॉडर्न उसमें जाना जाता है. तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. यूनानी जब अरब आई यूनान से, ग्रीक से, तो इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो पूरे वर्ल्ड में, यूरोप तक इस तरीके से उसको फैलाया कि वो आज जो भी फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं इन लोगों के कंट्रीब्यूशन का नतीजा है. नोन एज अखलाक और ह्यूमर.
उसमें बलगम कौन सा पार्ट है, अमूमन बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो वाइट पार्ट होता है, फ्लूइड होता है बॉडी का, वो बलगम के इसमें आता है, जो कि फ्लैग में कहलाता है। सेकेंड इज सौदा जो ब्लैक पोर्शन होता है, जो ब्लैक फ्लूइड होता है, जो ब्लैक पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे बाल है, आँख की जो काली पुतली है वगैरह ना, इनको प्रोवाइड करता है। ये 4 फ्लूइड जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी के जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, अलग अलग खसूसियत के लिहाज से उन तक वो चीज़ पहुंचाते हैं, जिसको खासतौर से आप लीवर और गॉल ब्लैडर में पित्त के नाम से जानते हैं। तो उसकी मौजूदगी होती है इन ह्यूमर्स में, एक वो है। नेक्स्ट है दम के माने हैं ब्लड, रेड जो हमारे जो फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर, वो है, उनमें मेनली आरबीसीज आते हैं ना, जो रेड कलर के होते हैं। तो ये चारों जो खिल्त हैं अखलात कहलाते हैं, और इनका एक तनासुब होता है बॉडी के अंदर। तो उस बेस पे, उस कॉन्सेप्ट पे है कि हर इंसान की अपनी एक जो है अपना मिजाज है, और वो मिजाज कैसे बनता है, इनके प्रॉपर तनासुब से बनता है। वो किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, यानी उसका नॉर्मल मिजाज अलग अलग अपना अपना हो सकता है। तो ये जो अखलात होते हैं, ये जो ह्यूमर्स होते हैं, ये एक बॉडी को, उसके मिजाज को जाहिर करते हैं, उसकी उनकी मौजूदगी। और इन्हीं में अगर कोई कमी या ज़्यादती होती है तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल जो हेल्दी स्टेट है उससे क्या करते हैं, वो डाइवर्ट कर जाता है, वो इलनेस में आ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा यूनानी सिस्टम जो है चलता है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने यहाँ देखा कि कलर के लिहाज से हमने शो किया, जैसा बताया, तो इसमें जो सामने जो दिखाया है, ये मिजाज के लिहाज से अलग अलग आपका बिहेवियर कैसा है, या आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जा सकती हैं, उसको हम इसके ज़रिए थोड़ा जाहिर करने की, बताने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। पहले कि सबसे पहले कोलेरिक है, यानी कि सफरावी मिजाज जो है। तो हमें आप में आपके बगल वाले का मिजाज कैसा है, आपसे डिफरेंट होगा ना। तो वो कैसे डिफरेंट होता है कि जिनका सफरावी मिजाज होगा वो बहुत ही एक्साइटेड होगा, है ना, काम करने में बहुत ही तेज़ हरकत करेगा, बहुत जल्दी काम करना चाहेगा कि मैं जल्दी से अपना काम निपटा दूँ। बहुत ईगोसेंट्रिक होगा, और उसके अलावा एग्जिबिशनिस्ट होगा, यानी अपने आप को शो बहुत करेगा, जाहिर करेगा कि हर चीज़ दिखनी चाहिए उसको, है ना, और बहुत एक्टिव होगा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है सैंग्विन, दमवी मिजाज जो है। तो इसमें जो है प्लेफुल होगा, यानी कि वो हर काम को हंसते खेलते अपना कंप्लीट करता है। इजी गोइंग होगा, बहुत आसानी से लेता है हर चीज़ को। सोशल लाइफ में जुड़ा होता है, सोशल होता है, सामाजिक होता है, लोगों से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, बहुत केयरफुल होता है, होपफुल होता है। ये दमवी मिजाज, यानी जिसके अंदर रेड ब्लड सेल या और भी उससे रिलेटेड जो दम है उनकी अगर उनकी जाती होती है। इसी तरह अगर फ्लैगमेटिक है, बलगमी मिजाज का है, तो रीजनेबल होगा, प्रिंसिपल्ड होगा, कंट्रोल्ड होगा, परसिस्टेंट, स्टीड फास्ट और काम होगा, कूल होगा। यानी जो बलगमी मिजाज के होते हैं वो थोड़ा सा सुस्त होंगे, काम बहुत आराम से करेंगे। तो ये उनकी खसूसियात होती हैं। नींद बहुत लेते हैं, सफरावी मिजाज वाले नींद कम लेते हैं। यानी कि आप हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम ये सब चीज़ें उनसे मालूम करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका नेचर क्या है, मिजाज क्या है, तो उससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब उसी नेचर, उसी मिजाज के लिहाज से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि आपको कौन कौन सी डिजीज़ेज़ बहुत कॉमनली होंगी आपके अंदर, यानी बहुत जल्दी आपको वो डिजीज़ेज़ आ जाएंगी आपके अंदर। तो इससे हमें जो हिकमत होती है, हकीम जो करते हैं, वो इसको बेस बना के चीज़ों को समझते हैं। तो होलिस्टिक इसलिए होता है कि जैसे ही आपने एंट्री की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चलना फिरना, हरकत करना, इन सारी चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला जो शख्स आ रहा है उसका मिजाज क्या होगा, वो किन किन डिजीज़ का सामना करने वाला होगा। तो इस तरीके से फ़ौरन हम देख के सबसे पहली फुर्सत में ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उसको
समझने की कोशिश करते हैं। वो हो सकता है कि वो पेशेंट आके आपको बताने वाला हो कि मुझे ये डिजीज़ है, लेकिन हमने क्योंकि इस बेस पे उनकी हरकतों को, उनके चलने के अंदाज को, उनके स्टाइल को समझ के अंदाज़ा लगा लिया कि इनका मिजाज क्या होगा, क्या क्या बीमारियां ये बोल सकते हैं। तो ये इससे हमें आसानी होती है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि जो हकीम लोग होते हैं तो वो दूर से ही पहचान लेते हैं या शक्ल देख के पहचान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर जिसने बहुत अच्छे से समझ लिया तो वो हकीम बनता है, वरना डॉक्टर अमूमन लोग कहते हैं। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाता है तो वो हकीम कहलाना ज़्यादा बेहतर पसंद करता है। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि 4 ये मिजाज होते हैं अलग अलग, जो कि मैंने पहले बता दिया उनकी खसूसियात क्या होती हैं अलग अलग फिगर के ज़रिए। इसमें बहुत समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें कौन मोटा होगा यानी पार्ट के लिहाज से उनका मिजाज समझाने की कोशिश की गई है फिगर में। ये भी बताया कि अब जो इक्विलिब्रियम है, जो तनासुब है उन अफलाद का, ह्यूमर्स का, जो बॉडी फ्लूइड हमारे होते हैं उनके अंदर सबका अपना अपना एक होता है, नेचुरल है ना। लेकिन उसी में अगर किसी एक खिल्त का या एक ह्यूमर का किसी वजह से बिगाड़ पैदा हो गया, फसाद पैदा हो गया, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अब उस खिल्त के या ह्यूमर से रिलेटेड डिजीजेज आपको अपीयर होंगी, आपके सामने आएंगी। तो उसके ज़रिए, और अगर वो तनासुब, वो रेशियो मेंटेन है तो आप सेहतमंद हो, अगर वही बिगड़ गया है तो आप अनहेल्दी हो, इल पर्सन हो ना। अब इसका इलाज करना होता है कि जाहिर सी बात है, सेहत अगर है तो हमारा उसूल ये है कि सेहत को कायम रखा जाए, मेंटेन किया जाए, बीमारी ना होने दी जाए। और अगर बीमारी हो गई है तो अब उसका इलाज कैसे करना है वो भी ज़रूरी है। तो हमारे वहाँ जो यूनानी तिब में मुख्तलिफ़ तरीके जो इलाज के इस्तेमाल होते हैं, उनमें रेजिमिनल थेरेपी है, आजकल आप बहुत सुनते होंगे, हिजामा वगैरह, मसाज है, स्पा वगैरह जो चाइनीज़ में होता है। तो रेजिमिनल थेरेपी के वो हमारे पार्ट हैं, उसमें कुछ मैंने लिखे हैं, तकरीबन 56 या उससे भी ज़्यादा हैं प्रोसीजर जो मैनुअली किए जाते हैं या किसी भी और तरीके से बगैर दवा दिए मरीज़ को इलाज किया जाता है। यानी इसमें मरीज़ को ओरली दवा नहीं दी जाती, ओरल ड्रग नहीं दी जाती है, लोकल एप्लीकेशन या मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो उसमें एक्सरसाइज, रियाजत जिसको कहते हैं, मसाज, स्टीमिंग, फुल बॉडी स्टीमिंग या इनकेबाब, भपारा लेना कहते हैं, इनहेलेशन वगैरह, और हिजामा और लीचिंग, ख़ास तौर से कश्मीर में द्रुक लीच एप्लीकेशन यहाँ का बहुत ही ख़ास इलाज है बाहर के मौसम में। तो इसी तरह से और भी हैं जो रेजिमिनल थेरेपी में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह है डाइटोथेरेपी। डाइटोथेरेपी में ये होता है कि जो डाइट मरीज़ को दी जानी है, अब उसके मर्ज के लिहाज से, उसके मिजाज के लिहाज से कैसी डाइट उस मरीज़ को देनी है। तो बहुत सारे ऐसे मर्ज हैं जो डाइट और एक्सरसाइज वगैरह, रियाजत वगैरह से ही हमारे बगैर दवा के ही ट्रीट हो जाते हैं, तदबीरों से ही ट्रीट हो जाते हैं, यानी हमें दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अब उसमें कौन सी डाइट, कौन सा फूड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये एडवाइस करते हैं पेशेंट को। तो उस तरह से हम ट्रीट करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है लास्ट में जो फार्माकोथेरेपी है, कि अब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं ओरली। पहले ग़िज़ा और तदबीर किया और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। कहा यह जाता है, हिपोक्रेट ने कहा है कि बेहतर है कि आप ग़िज़ा का इस्तेमाल पहले करो, है ना, क्या अवॉइड करना है, क्या आपको लेना है। दूसरा ये कहा कि अपने इलाके की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो अगर दवा लेनी है तो उस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे, तो मुझे लगता है कश्मीर ऐसी जगह है कि यूनानी तिब में अक्सर जो हमारी दवाएं बताई गई हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, और इलाकों में वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी जो कश्मीर में बहुत ही ख़ास हैं, है ना। तो ख़ास तौर से एक तरीके से नेमत है हमारे लिए ये जगह। मैंने अपना ट्रांसफ़र भी, मैं बार बार कहता हूँ, अपना इसी मकसद से मैंने कराया कोलकाता से कि यहाँ के जो प्लांट हैं मैं उनको एक्सप्लोर कर सकूँ और उनके बारे में मालूमात ले सकूँ। तो मेरी एक कोशिश थी यहाँ ट्रांसफ़र करने की। तो यूनानी तिब में ख़ास तौर से जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनमें एनिमल सोर्स जिसको अद्विय हैवानिया कहते हैं, मिनरल सोर्स जिसको अद्विय मादनिया कहते हैं हम लोग, और
प्लांट सोर्स जो नबाती, अद्विया नबातिया। तो ये 3 सोर्सेज हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्लांट सोर्स जो है पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 80% जो इसका लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ रिसर्चेस जो हो रही हैं ज़्यादातर प्लांट जो सोर्स है उस पे हो रही हैं। तो कश्मीर में हर तरह के आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एरोमेटिक, समझिए कि यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आप अगर इस पे काम करते हैं, इसके कल्टीवेशन पे काम करते हैं, तो या इसके जो है मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखते हैं कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको यूनानी तिब में ज़ाफ़रान कहते हैं। क्रोकस, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो एक पुराना शहर था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था, क्रोकाई ऐसे कुछ नाम था। तो इस तरीके से इसका जेनस, एक तो होता है जेनस नाम होता है, स्पेसीज नाम होता है। तो अगर आपको जहन में रखना होगा, इनके नामों को याद करना होगा, तो बहुत सारी जगह पे अगर आप इसके मतलब को भी समझ जाया करेंगे कि क्यों ये रखा गया, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसका स्टिग्मा यूज़ होता है मेनली, और यूनानी तिब में बहुत ही बेहतरीन ये प्लांट है, जो कि हमारे वहाँ ख़ास तौर से जो मैदे की स्टमक डिजीज़ेज़ हैं, और ख़ास तौर से किडनी की जो डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए ये बेहतरीन दवाएं हैं। माजून वगैरह और डिफरेंट फार्म में और इसके ऑयल वगैरह बनते हैं, तो हम अलग अलग डिजीज़ेज़ में उनको देते हैं। इससे क्या है, इत्र बनती है फ्रेगरेंस के लिए, खुशबू के लिए, और आप मार्केट में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यूनानी में इसका क्या इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं कि कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल जिक्र है। कैंसर के अमराज में अगर शुरू का यूनानी तिब में ये है, हिपोक्रेट वगैरह ने कहा है कि कैंसर अगर फाइंड आउट हो रहा है शुरू के स्टेज में, तो वो फिर क्योरेबल है, लेकिन जैसे जैसे वो अपग्रेड होगा, स्टेज चेंज होगी, आगे जाके वो क्योर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सूरत में ट्यूमर वगैरह हो रहे हों, अभी स्टार्ट हो रहे हों, तो इनका लोकल एप्लीकेशन भी, और इनके ऑयल वगैरह या इनके जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ओरल प्रोडक्ट होते हैं, एक लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करने से 6 महीना 4 महीना इस तरीके से उसमें कमी आपको नज़र आने लगेगी। तो इसीलिए हम लोग जो रिसर्च करते हैं इस पर, तो मेनली इसको रखते हैं कि जो लंबी स्टडी हो थोड़ा सा, है ना, तो उससे क्या होता है, इस तरह के डिजीज़ेस में हम फिर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आई साइट को इम्प्रूव करता है, बताया जाता है, हकीम लोग बताते हैं कि इसको हल्का सा अरके गुलाब में या पानी में इस स्टिग्मा को घिस लीजिए, और उसको, और वो चीनी का प्याला हो, चिकना वाला जो होता है प्याली वगैरह, तो घिस के उसके पानी को आँखों पे सुरमे की तरह लगाने से क्या होगा, आई साइट तेज़ होगी। होता क्या है कि ठंडक के मौसम में खास तौर से जब यहाँ पे ठंड की वजह से मादे में जमाव आ जाता है, तो ठंड के बाद शुरुआती दौर में बाहर में जैसे लीच लगाते हैं, जोक लगाते हैं, अगर उस टाइम में आप इसका सुरमा लगाएंगे तो क्या होगा, वो वाटरी पानी निकल के, आंसू निकल के, वो जो ठंडक में मादा जमा हो गया है, आंखों के इर्द गिर्द ब्लड हो रही हैं या हैवीनेस, या इस दौरान में भी अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे आंखें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करें, अरके गुलाब में हल्का सा घिस के आंखों में सुरमे की तरह इस्तेमाल करें, तो वो सारे टॉक्सिन्स होते हैं या वो मादे बाहर आंखों से बाहर निकल जाते हैं और क्लीन आपको दिखता है। इसी तरह अस्थमा के लिए है, अगर बहुत दमा वगैरह हो रहा हो तो इसका डिकॉक्शन वगैरह, ये जैसे आप कहवा बनाते हैं, चाय वगैरह ना, तो वो आप रेगुलर इस्तेमाल करने से अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। वजह क्या है, क्योंकि ये इसका मिजाज गर्म है, हॉट है ना, और अस्थमा क्या मिजाज सर्द है, इसीलिए सर्दी में वो बहुत सीवियर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा वगैरह के लिए फ़ायदा हो। एपिलेप्सी जो है ये भी बारिद मर्ज कहलाता है यूनानी में, दिमाग पे जो है बारिद मादों का जो है जमा हो जाता है या नर्व में ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उसको खोलने के लिए। इसी तरीके से वुंड हीलिंग के लिए इसके मरहम बनाए जाते हैं। आप इसको शहद में हल्का सा इसके, और वुंड हो, कहीं पे भी ज़ख्म ना भर रहा हो, आप वहाँ पे लोकली अप्लाई करिए, बहुत जल्दी आपका ज़ख्म भर जाएगा। सेकेंड, कौन सा प्लांट, बनुशा है ना, कश्मीर में नूनपोश और बनुशा इसको कहते हैं।
यूनानी तिब में इसको सर्द भी कहा गया है, कुछ लोगों ने कहा है, और कुछ लोगों ने गर्म कहा है, गर्मतर। इसमें तरी है, रतूबत होती है। तो जिनको ड्राइनेस हो रही हो, खुश्की हो रही है, उनके लिए इसका ऑयल वगैरह लगाना बहुत अच्छा है। जैसे स्किन पे ड्राइनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका ऑयल आप स्किन पे लगाइए, तो उससे तरी आती है, नमी आती है, मॉइस्चराइजिंग एक तरीके से ये है। नून पोस्ट क्यों कहते हैं, इसका हिस्टोरिकल नाम जो है वियोला तो वायलेट कलर है, ओडोरेटा इसकी खुशबू की वजह से है, ऑर्डर है। और नून पोस्ट जो है, नून मतलब नमक और पोस्ट मतलब फ्लावर। तो पहले के जो उमरा हुआ करते थे या बड़े लोग यहाँ के होते थे, वो लोकल लोगों से नमक के बदले में, या नून कभी कभी कहते हैं जरिए मुआश, है ना, तो खाना पीना खर्च के लिए, तो उसके वजन के बराबर उतने पैसे या उतना नमक देते थे। नमक की पहले बहुत अहमियत थी, तो इसलिए इसका जो नून पोस्ट नाम रखा गया कश्मीरी में, कि उस वक्त वो अगर आप इतना लाते हो तो हम उसके वजन के बराबर आपको नमक देंगे या उसके बराबर रुपया पैसा देंगे आपके खर्चे के लिए। तो लोग कलेक्ट करके खूब जंगलों से इधर उधर से लाते थे, और जो लोग बेचने वाले होते थे या जो अमीर होते थे यहाँ के लोग, वो लोग खरीदते थे। तो यूनानी तिब में इसका रोगने बनफ्शा, बरगे बनफ्शा, पत्ती इसकी, और गुले बनफ्शा, ये मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसको जो है कोल्ड कफ के लिए और कोराइजा है, प्ल्यूरिसी, इंसोम्निया, अगर नींद नहीं आ रही हो, पानी में डिकॉक्शन बनाइए और किसी मटके में आप सुराख करके उसमें से पेशानी पे इसका नतूल कराइए। हमारे वहाँ नतूल जो इलाज की तदबीर का, रेजिमिनल थेरेपी का वो प्रोसीजर है कि आप पेशानी पे नतूल कराएंगे, पानी को ऊपर से गिराएंगे, तो क्या होगा, 2-3 दिन में आपको बेहतर, जो पुराने से पुराने मरीज हैं, नींद नहीं आ रही है, उनको बेहतरीन नींद आने लगेगी। तो तदबीरी इलाज भी है, और इसको इंटरनल यूज़ भी कर सकते हैं आप डिकॉक्शन वगैरह बना के, तो उससे भी दिमाग में ताजगी आती है, और जो बेचैनी और जो परेशानी रहती है वो धीमे धीमे कमी हो जाती है, हैवीनेस वगैरह। यूटीआई वगैरह, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह में, सिस्टाइटिस में इसका इस्तेमाल बहुत है। बुखार को कम करने के लिए, सर में दर्द, माइग्रेन वगैरह के लिए भी वही नतूल का तरीका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एपिलेप्सी के लिए, थ्रोट प्रॉब्लम जितनी भी हैं, सोर थ्रोट है, गले में खराश वगैरह हो रही हो, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाल्पिटेशन हो रहा हो, दिल बहुत तेज तेज धड़कता हो, ठंडक में अक्सर जो है ऐसा होता है। तो 2 तरह के पाल्पिटेशन होते हैं, एक तो ठंडक में होगा, एक गर्मी की वजह से होता है, गर्म मुकाम में रहने वालों को भी होता है। तो जो यहाँ पे खास तौर से, जैसे हिपोक्रेट ने कहा ना कि जिस जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के प्लांट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो आप जब गौर करने लगोगे तो आपको यहाँ के प्लांट आपको नेमत नज़र आएंगे। तो ये ठंडक में जो पाल्पिटेशन होता है, ठंड के मौसम में अगर आप उसमें इस्तेमाल करोगे तो वो आपको फ़ायदा होने लगेगा उससे। उसके अलावा लीवर की डिजीज़ में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा हो, या और भी जो दूसरी कंडीशन है लीवर से मुतल्लिक, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर में इसके फोकलोर में जो इस्तेमाल है, ड्राई फ्लावर्स जो है, ड्राई फ्लावर्स इसके जो होते हैं, शुगर के साथ आप बारीक पीस लीजिए और उसको 6-7 ग्राम डेली खाने के तौर पे सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, तो ये मुख्तलिफ जो कफ है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, और फीवर है, सोर थ्रोट वगैरह है, इन सब में फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर इसके फ्लावर का या होल प्लांट का अगर आप डिकॉक्शन बना लेते हैं, तो ये आपको कफ, कोल्ड और इन चीज़ों में आपको फ़ायदा करेगा। थर्ड, यूनानी में हाशा, और आप लोग कहते हो जाविंद, है ना। तो हाशा ये भी मिंट फैमिली का है, पुदीने की फैमिली का है, सारी लेमिएसी फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा है। इस जो मिंट फैमिली है, ये लेमिएसी फैमिली है, जो खुशबूदार सारे प्लांट इसमें होते हैं। तो उनमें से कुछ मैं आज दिखाऊंगा। ये हाशा है, जाविंद है ना, थाइमस सर्पाइलम हाशा। इसका मिजाज भी गर्म होता है, तो ऐसे ही जो ठंडे मिजाज की जितनी भी डिजीजेस हैं वो सारी में आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर आपने सिर्फ समझ लिया मिजाज को, तो अब आप कोई भी प्लांट है उसका मिजाज समझ गए, तो फ़ौरन आप, ये नहीं है कि आपने लिखा हुआ देखा है कि नहीं उसको, ये किन किन अमराज में काम करेगा, नहीं, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा मुझे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं इंतज़ार करोगे कहीं पे लिखा हुआ होगा कि इस मर्ज़ में ये काम करेगा, नहीं। अगर डिजीज़ जो है वो बलगमी है, तो गर्म मिजाज की दवाएं हर बलगमी डिजीज़ में, हर ठंडी डिजीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब समझना बहुत आसान है, अगर समझना चाहें तो।
इसी तरह ये इस्तेमाल इसका जो है कफ कोल्ड है, कोराइजा है, अस्थमा है, पैरालिसिस है, इम्यूनोगॉग प्रॉपर्टी रखता है। अगर आप इसका डिकॉक्शन यूज़ करते हैं तो ऐसी सूरत में जब मेंसेस रुक जाते हैं किसी वजह से, तो उसमें अगर आप इसको उबाल के पीते हैं या इसका जूस निकाल के, क्रश करके जूस निकाल के 1 चम्मच 2 चम्मच अगर पानी में डाल के या जो भी सिरप वगैरह है उसमें डाल के अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेंसेस जारी हो जाएंगे। इसी तरह यूटीआई वगैरह है, हेडेक है, किडनी डिसऑर्डर में ख़ास तौर से बहुत बेहतरीन इसका इस्तेमाल है। मेमोरी लॉस के लिए इसकी खुशबू, आप इसका प्लांट घर में लगाइए और डेली जो है सुबह सुबह इसकी खुशबू लीजिए, एरोमा। तो उससे क्या होगा, ब्रेन में ताजगी आएगी और बहुत सारे जो टेंस माहौल है ब्रेन से उसकी वजह से बना रहता है वो रिलैक्स मोड में आएगा और फिर मेमोरी आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। कश्मीर में फोकलोर में इसको जो है इसका इन्फ्यूज़न जो है इच वगैरह कहीं पे भी खुजली वगैरह हो रही हो, क्रश करिए या इसको डिज़ोल्व करके और तेल में या पानी में करके आप रोगन गुल में किसी में करके आप लगा सकते हो। तो इच अगर हो रही है, खुजली हो रही हो या कोई दाने पड़ रहे हो तो उससे बहुत आराम हो जाता है। यानी पहले आपके घरों में नानी दादी वगैरह के नुस्खे हैं ये सब जो इस्तेमाल हुआ करते रहे होंगे। अब आप लोग नई जनरेशन है, दोबारा से फिर से वही रिसाइकल होना है और उन चीज़ों को मालूम करना है उनके बारे में, ताकि आप कल को लोगों की खिदमत कर सको, है ना। इसका एसेंशियल ऑयल भी मार्केट में मिलता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा है, आप देखेंगे इसकी पत्तियां जो हैं चूहे के कान जैसी हैं, कुछ बारीक बारीक रोए से नजर आ रहे हैं। इसका नाम भी उसी नाम पे रखा गया है, मर्जन जोश। इसको मर्जन गोश, मर्जन फारसी लफ्ज़ है मर्जन गोश और अरबिक मर्जन जोश। तो गोश के माने कान होते हैं, मर्जन मतलब चूहा होता है। तो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे तिब में, यूनानी तिब में बहुत सारे ऐसे पॉइंट की चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम उस पर गौर कर लिए तो ये प्लांट कभी भी हमारे सामने आएगा, हम उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो चूहे के कान जैसा होता है, इसीलिए इसको मर्जंगोस कहते हैं। आप जब पिज़्ज़ा हट पे जाते हो तो अक्सर उस पर छिड़कते हो एक चीज़, ओरिगेनो। तो आप उसको छिड़क के बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना, तो पिज़्ज़े पे आप छिड़कते हो तो आप अक्सर डेली यूज़ कर, जब भी जाना होता है इत्तेफाक होता होगा। तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये भी लाइमेसी फैमिली की है, खुशबूदार प्लांट में से है। ओरिगेनो वल्गेर या इसकी तकरीबन पाँच मर्जन जोश जो स्पेसीज हैं यूनानी में बताई गई हैं, 5 तरह की हैं। ओरिगेनम वल्गेर है, ओरिगेनम मार्जोरम है, स्वीट मर्जन जोश है एक, और ये वाली वाइल्ड है, इसको वाइल्ड मर्जन जोश कहते हैं, जंगली पुदीना। तो ये भी जो है, इसको जो ओरिगेनम है इसके माने हैं जो यूनानी ग्रीक वर्ड से लिया गया ओरिगेनो, जॉय ऑफ माउंटेन। तो इसी से जाहिर हो रहा है कि ये उधर नहीं मिलेगा यहीं पे, यहाँ की स्पेशलिटी है। ये प्लांट जो है यहाँ पे पाया जाता है ना। तो जॉय ऑफ माउंटेन, इसको वाइल्ड मार्जोरम कहते हैं। मुख्तलिफ तरीके से इसका इस्तेमाल है, कभी डिकॉक्शन बना के, कभी ऑयल में यूज़ करते हैं, कभी डिफ्यूज़र के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी इससे फ़ायदे लेने होते हैं वो सारे किस तरीके से, कौन कौन सी डिजीज़ में ये काम करते हैं। इसका वही इन्फ्यूज़न है, कोल्ड वगैरह कफ वगैरह में आप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल जो है मसाज करने के लिए, बॉडी मसाज के तौर पे, एक तो खुशबू प्रोवाइड करता है, दूसरा स्टिमुलेंट है, यानी कि सर्कुलेशन को बढ़ा देता है सुपरफिशियल स्किन के। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन बाहर की तरफ आता है, पसीना होगा या उससे जो स्किन में जो मादे हैं जो रुके हुए हैं वो क्या होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और ताजगी आ जाती है स्किन में, है ना। तो उससे मालिश की जाती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है, कोलिकी पेन अगर होता है या फिर डायरिया है, रिमेटिस, डायरिया में ये एंटी माइक्रोबियल के तौर पे काम करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। रिमेटिज्म में पेन को कम करता है और टूथेक हिस्टीरिया वगैरह में बहुत ही फायदेमंद है। एक और प्लांट है, ये भी कश्मीर के खास अपने नाम से ही जाहिर करता है, मुश्क बाला। बाला के माने ऊंचाई पे, और पहाड़ों पे ये पाया जाता है। मुश्क के माने खुशबू होती है, इसमें खुशबू बहुत होती है, यहाँ तक कि मैंने अपने निकाल के अपने घर में रखा हुआ है।
तो जब उसको घर में कहीं डब्बे से निकाल के रख देता हूँ पूरा घर महकता रहता है, इतनी खुशबू होती है पूरे घर में एकदम। और थक हार के ऐसा करना पड़ेगा, फिर पैक करना पड़ेगा आपको उसको, क्योंकि कुछ वक्फे तक अगर आप रेगुलर इसको बाहर रखेंगे तो सर पे भारीपन होने लगेगा। तो इतनी खुशबू इसकी होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन खुशबू इसकी है। और ख़ास तौर से ये इंसोम्निया में अगर नींद नहीं आ रही हो किसी को कई दिनों से, तो अगर इसका इस्तेमाल करता है, इसका पाउडर जो रूट होता है पाउडर करके आप इसको रख लें और थोड़ा सा चम्मच से किसी भी पानी से या किसी और चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी इन्हेंसर है, मेमोरी को ये बढ़ाने में बहुत मदद करता है। नर्व टॉनिक ज़बरदस्त है, नसों को मजबूत करता है और ख़ासतौर से डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। पैरालिसिस जो कि बलगमी मर्ज है, जो नसों में बरूदत पैदा हो जाती है, बलगमी मादे की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर कर दिया जाए तो वो मादे जो हैं बाहर बदन के बाहर निकल आते हैं और फालिज वगैरह में फ़ायदा होता है। वलेरियाना जटामांस, इसके ऑयल भी मार्केट में आते हैं, वलेरियाना ऑयल है ना। और इसके रूट का इस्तेमाल जो कश्मीर में हो, खासतौर से फोकलोर में इसका है, हिस्टीरिया है, नर्वस अनरेस्ट है, इमोशन ट्रबल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वायगंड, क्या कहते हैं, वज तुर्की, वज हमारे वहाँ अकोरस कैलामस, बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। खासतौर से हमारे इलाके में जो लोग मछली मारने वाले होते हैं वो एक पाउडर बनाते हैं, उसके साथ इसका पाउडर मिक्स करते हैं और आटे के लोई में मिक्स करके और उसको पैक करके खुला रहता है थोड़ा सा, और रस्सी धागे में बांध के पानी में वहाँ पे डाल देते हैं और अपनी जो भी जाल वगैरह फेंकना है तैयार रहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ये जाल फेंक के ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ कलेक्ट करते हैं, तो ऐसा पाउडर बनता है स्पेशल हमारे वहाँ। तो ये इतनी खुशबूदार ये भी होता है, इसके राइजोम जो होते हैं वो मेडिसिनली यूज़ होते हैं पाउडर की शक्ल में, या इसका ऑयल भी बनाया जाता है। मैंने जो भी बताया 3-4-5 में मैंने खुद वो ऑयल बना के रखे हुए हैं, तो बहुत ही खुशबू होती है। और ख़ास तौर से ये क्योंकि सारी गर्म दवाएं ये हैं, तो जितनी भी नर्व की कमज़ोरी है या दिमाग से रिलेटेड अमराज हैं उनमें ये बहुत बेहतरीन काम करता है। वाइग्रेंट, वज तुर्की, बच कहते हैं हिंदी में, और अगर तुर्की क्योंकि ये तुर्की में भी पाया जाता है, वहाँ का नेटिव है या वहाँ का स्पेशल प्लांट कहलाता है, इसलिए इसका नेक्स्ट एक नाम अगर तुर्की भी है। इसको जैसा कि मैंने बताया ब्रेन टॉनिक के तौर पे, हाँ इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, मुरब्बा वज के नाम से यूनानी में। तो मुरब्बा इसका शक्कर में या शहद में इसको बनाया जाता है, और वो जैसे और मुरब्बे खाए जाते हैं उस तरीके से डेली आप एक मुरब्बा इसका खाएं। मेमोरी ज़बरदस्त, निस्यान के लिए यूनानी तिब की सबसे बेहतरीन, अक्सर टेस्ट में आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेमोरी लॉस, हमारे वहाँ इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है अगर मेमोरी लॉस हो रही हो तो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे वहाँ माजून की शक्ल में और मुरब्बे की शक्ल में आता है। इसका ऑयल भी अगर सूंघने के लिए एसेंशियल ऑयल इसमें होता है तो वो फ़ायदेमंद होता है। कश्मीर में इसका राइजोम, मेनली जो ये राइजोम इस्तेमाल होता है, तो कार्मिनेटिव है, स्टिमुलेंट और टॉनिक के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव, जो फैटी मतलब जो फैट ज़्यादा लेते हैं उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन दवाओं में से एक है, फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपने उसके बाद खा लिया तो बहुत इजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा सा पाउडर खाने से या फिर लोकली यहाँ पे पेट पे इसके ऑयल का मसाज करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसकी माला भी बनाई जाती है, यहाँ पे गर्दन में लटकाया जाता है, तो बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म करता है, और ख़ास तौर से जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं उनको ये दूर करता है। सेड्रस, देवदार है ना, यहाँ लंबे दरख्तों में देव जैसा होता है, और इसलिए जो है दार के माने लकड़ी या ट्री कह लें, दार अमूमन लकड़ी को कहते हैं। देवदार वो लकड़ी जो देव की तरह खड़ी हो। तो ये दरख्त जो है बिल्कुल, आप बहुत सारे लोग अगर अंधेरों में देखें तो डरेंगे
कि इतनी इसकी बुलंदी होती है। और हमारे वहाँ रोगन देवदार येलो कलर का ऑयल इससे बनाया जाता है, जो कि सारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में भी इसका बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि ये पाइन से रिलेटेड है। इसमें जो बहरोज़ा हमारे वहाँ यूनानी तिब में इस्तेमाल होता है, गोंद इसका जो होता है, तो उसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है, एरोमेटिक बहुत है, तो उसका भपारा लेने से भी लंग क्लियर होता है, साफ होता है और उससे फ़ायदा होता है। एस्ट्रिंजेंट के तौर पे फीवर में और डिसेंट्री, डायरिया वगैरह में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसकी लकड़ी को जो है पसीना अगर इस्तेमाल कहते हैं मुअर्रिक है, पसीना लाता है ना, तो उससे क्या होता है, पसीना क्योंकि यहाँ पे निकलना भी नेमत है, यहाँ पे पसीना निकले तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ आपके बदन से निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ निकलता कम है, तो इसीलिए अगर कोई किसी वजह से आपको पसीना निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पसीने का बदन के अंदर रह जाना भी बीमारियों को पैदा करता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं पसीनों से निकल जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे बुखार है, फीवर है, तो अगर आप फीवर के टाइम में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पसीना निकाल के सारी हरारत को, हीट को बाहर कर देगा और बदन नॉर्मल होने लगेगा। लंग डिजीज़ में और दूसरी कंडीशन में इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। सभी जानते हैं पुदीना, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है हमारे वहाँ सख्त पुदीना निकलता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल ज़्यादा हमारे वहाँ होता है। तो उसको किसी ऑयल में डिज़ोल्व कर लिया जाए तो जितने भी जॉइंट पेन हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप उबलते हुए पानी में डाल के उसका भपारा लीजिए, तो जितने भी हलक से रिलेटेड और थ्रोट से नाक वगैरह, नज़ले ज़ुकाम वगैरह की कंडीशन है उसमें फ़ौरन आपको फ़ायदा होगा। हेडेक हो रहा हो तो किसी चीज़ में रोगन में मिला के आप लोकल अप्लाई कर दीजिए, तो फ़ौरन आपका सर का दर्द वगैरह दूर होने लगेगा। अगर इंटरनल लेना है तो किसी भी ऑयल में, रोगन वगैरह में मिला के या ऐसे ही पानी में मिला के छोटा सा टुकड़ा, पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, इमरजेंसी में नाइट के, मेरे पास अक्सर जो है घरों पे रखे रहता हूँ, हर जगह रखे रहता हूँ इसको, अपने उस घर में, यहाँ पे भी, कभी भी रात में कभी तकलीफ हुई, पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पास दवा नहीं है, यानी कि हर तरह के दर्द को आप लोकल और इंटरनल इसका इस्तेमाल करके फौरी तौर पे, वक्ती तौर पे फौरी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और फिर मौका मिलेगा फिर आप फर्दर डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर इलाज कराइए। इसकी फ्रेश लीफ को क्रश करके इसका एक्सट्रैक्ट हासिल कर लिया जाता है। गैस्ट्राइटिस, अगर ताज़ा पत्तियाँ, अगर वो एक्सट्रैक्ट आपके पास नहीं है तो आप घर में उगा होगा, थोड़ा सा लीजिए, कुचल लीजिए और उसको निचोड़ दीजिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच, उसमें से जो भी उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है फौरी तौर पे आप लीजिए। गैस्ट्राइटिस की वजह से अगर पेन हो रहा हो फ़ौरन आराम होगा। इसका पाउडर जो है एरियल पार्ट का, दही में अगर मिला के आप इस्तेमाल करते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह अगर हो रहा है, कब्ज़ है, तो उसमें बहुत अच्छा इससे फ़ायदा हासिल होगा। पहाड़ों का ताज कहते हैं इसको, क्योंकि ये भी पहाड़ों पे होता है ज़्यादातर, तो क्योंकि जब ये होता है या लगता है तो पूरे पहाड़ को ऐसे घेरे हुए होता है, जैसे लग रहा है ताज पहना हो पहाड़। इकलीलुल जबल कहते हैं अरबी में, इकलील के माने ताज होते हैं, जबल पहाड़ को कहते हैं, इकलीलुल जबल। और रोजमेरी, बहुत ही कॉमन नाम इसका, रोजमेरी एरोमेटिक प्लांट है, कश्मीर में पाया जाता है। इसका ऑयल निकाला जाता है, ये भी स्टिमुलेंट है, मिजाजन गर्म है तो ठंडे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या ठंडी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी दवाएं क्या होता है, शिकायत सबको रहती है कि उसने खाया फ़र्क पड़ा, मैंने खाया नहीं हुआ, ऐसी कौन सी दवा है, ये क्या बात हुई। और एलोपैथ में पैरास्टामोल लिया, सबका बुखार उतर गया। तो यही फ़र्क है मिजाज का, क्योंकि आप दूसरे मिजाज के हो, आप दूसरे मिजाज के हो, यहाँ पे हकीम की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ सेल्फ मेडिकेशन नहीं चलेगा, तो समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो अक्सर लोग करते हैं शिकायत कि ऐसी क्यों नहीं दवा आप बनाते जो जैसे एलोपैथ वाले बनाते हैं कि बिल्कुल इतने ग्राम तक दिया और काम कर गया। यहाँ हिकमत है, इसीलिए इसको हिकमत कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है, हकीम आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर नुस्खा तरतीब करता है। तो क्या होगा कि उस वक्त वो दवा बहुत तेज़ लगती है,
तभी कहते हैं कि फला हकीम जो है, अरे उसके हाथ में शिफा है। शिफा कैसे आती है कि जब वो चीज़ समझ लेता है, वो उसकी बारीकियों को समझ लेता है। हमने क्या किया, जनरल एक बना लिया है जैसे एलोपैथ टाइप का, कि उन्होंने पैरास्टामोल यूज़ किया, इनको सबका बुखार उतर गया। तो हम चाहते हैं कि हम भी वैसा ही कुछ पैदा करें। थोड़ा मुश्किल है ये कर पाना। हाँ, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, जिस तरह से पैरास्टामोल बनी या दूसरी दवाएं, तो उस पर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो होलिस्टिक अप्रोच है, हमें जनरल पूरी बॉडी को देखते हुए करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा यूनानी या आयुर्वेदा में मुश्किल होता है उस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना, क्योंकि फिर हम भी वही हो जाएंगे ना, दोनों एक हो जाएगा फिर। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा मिजाज का, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। लेकिन हमें बताना होता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में आना है, साइंस सामना करना है हमें, तो हमें बताना होगा कि हाँ, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो ये काम करता है। तो इसलिए हमारी जो स्टडीज़ होती हैं उस पर बेस्ड होती हैं, कि हमें फिर उस लिहाज से बताना होता है लोगों को, कि मॉडर्न साइंस में लोगों को बताना होता है कि हाँ, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। लेकिन एज ए होल अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये भी ब्रेन टॉनिक के तौर पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, यूटीआई, लंग डिजीजेज, मेमोरी लॉस में इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर से आजकल बहुत चला हेयर लॉस, है ना। तो बल्कि मैं भी अपने घर में बनाता हूँ। तो इसका जो शगुफा होता है, यानी ऊपर का हिस्सा जो होता है जिसमें फ्लावर होते हैं, तो वो हिस्सा आप काट के बारीक बारीक टुकड़ों में एक ऑयल में रखिए, एक उस ऑयल को एक बर्तन में रखिए, और उस बर्तन को एक और बड़े बर्तन में जिसमें पानी हो उसमें रखिए, और उसको हल्की आंच पे उबलने दीजिए। यानी डायरेक्ट हीट नहीं देनी है। उस पानी से वो बर्तन गर्म होगा, उस बर्तन से वो ऑयल गर्म होगा, और उस ऑयल की गर्मी से उसके अंदर के जो अज्जा हैं वो उस ऑयल में आएंगे। उस ऑयल को आप कलेक्ट कर लीजिए, आपका हेयर ऑयल ज़बरदस्त तैयार है, और बालों में लगाइए। रेगुलर आप देखिएगा कि 2-3 महीने में आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। इसके मसाज के तौर पे भी वैसे ही जो और भी तेल और भी ऑयल है, मसाज के तौर पे उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्ली इसको बहुत पसंद करती है। नेटल भी कुछ किसी ने कहा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जैसे ही आप देखोगे वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी मुशाबहत की वजह से। जैसे आपने कहा नेटल जैसा लगता है ना, लेकिन ये है गंध सोए। सोए कौन सा है? नेटल। अब ये गंध सोए है, यानी खुशबूदार नेटल है। जो आपने बताया यानी देखने में वैसा लगता था, लेकिन ये खुशबूदार है, दूसरी स्पेसीज है। कौन सा? ये नेपेटा कैटारिया है। कैटारिया क्यों इसका नाम रखा गया? कैट, बिल्ली इसको बहुत पसंद करती है। मैंने अपने घर में लगाया, बाकायदा मैंने वीडियो बनाया है। बिल्ली जो कभी हफ्तों महीनों वो बिल्ली वाइट कलर की मेरे घर में आई नहीं थी, वो आई और मैंने वीडियो बनाया। वो वहाँ पे बैठ के खूब उसके साथ खेल रही है और उसको खा रही है। तो वो वीडियो स्पेशल मैंने बहुत बनाया है। तो जैसा आप देखेंगे जितने भी बिल्ली से रिलेटेड जितने इस फैमिली या इस जैसे टाइगर वगैरह है या और भी जो हैं, तो वो इसकी खुशबू से इसके अंदर जो मौजूद नेपेटालेक्टोन है उसकी वजह से उस तरफ माइल होती हैं। और इसको क्या करते हैं, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही वाइल्ड होता है, ख़तरनाक किस्म के होते हैं, तो ये अपने माइंड को कूल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इनको इस प्लांट की। तो ये इसकी तरफ आते हैं और इसको खाते हैं, फिर रिलैक्स होकर कहीं बैठ के अपना आराम से रिलैक्स होते हैं। तो माइंड के लिए, दिमाग के लिए अंदाज़ा आप लगाइए कि कितनी बेहतरीन दवा होगी कूल करने के लिए माइंड को। और दूसरा इसकी जो जनरल नाम है कैट मिंट है। यानी कैट मिंट का मतलब ये हुआ कि इसमें मुख्तलिफ स्पेसीज हैं जो ये खसूसियत रखती हैं, तो वो कैट मिंट कहलाती हैं। और ख़ास तौर से ये वाली स्पेसीज जो नेपेटा कैटारिया, ये कैटनिप कहलाती है। दोनों में कैटमिंट और कैटनिप में ये डिफरेंस है कि ये जेनरिक नेम को जाहिर करती है और वो स्पेसिफिक। बिल्ली लोटन, जैसा कि नाम पता चल गया, यानी आपने क्या किया, जो उसके मुख्तलिफ नाम है उन पे अगर गौर कर लिया तो अब ये प्लांट या ये चीज़ कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपके जहन में रहेगी। और एक बार सामने से देख भी लिया तो ये हमेशा कैसी देखने में सोए जैसी है,
है ना, लेकिन खुशबू है तो सोए नहीं है, गंध सोए है, तो इस तरीके से आप उसको पहचानेंगे। ये यहाँ का प्लांट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मोदी जी खास तौर से इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर में, और पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से यहाँ पे शुरू किया गया, और जो खेती करने वाले हैं उनको खास तौर से वो किया जा रहा है, उनको कुछ हेल्प भी दी जा रही है कि इसका कल्टीवेशन किया जाए यहाँ पे। तो ये है लेवेंडर। इसका लेवेंडर नाम कहाँ से लिया गया? यूनानी नाम लेवेयर से। लेवेयर के आपने लेवेटरी सुना होगा, फ्लाइट में जाते हो लेवेटरी या कहीं पे लिखा होता है। लेवेयर वाश करने को कहते हैं, धुलने को कहते हैं। पुराने ज़माने में रोम और यूनान में कपड़ा धुलने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, यानी कपड़ा धुलने के बाद लास्ट में उस पानी में उसको सोख करके निकाल के फैला दिया जाता था, जिससे कि कपड़े में खुशबू एक हमेशा बनी रहती थी। तो लेवेयर जो नाम लिया गया है उसी से बना, उसके बाद ही वो नाम मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ पे जो लेवेंडर या लेवेंडुला नाम रखा गया जीनस लेवेयर की वजह से उसको, क्योंकि ये वॉश करने के लिए, कपड़ों को धुलने के लिए या खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूनानी तिब में इसका मेडिसिनल जो पर्पस है, इसका जो शगुफा है, इसके ऊपर के जो फ्लावर हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसकी धुनी दी जाती है इसके फ्लावर की, खास तौर से इन्फेक्शियस डिजीज़ में, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं तो अगर उस कमरे में या ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहाँ पे उसकी धुनी, उसको स्मेल लिया जाए उसकी, तो उससे क्या होगा कि इंटरनल भी और लोकल भी जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगे उन पे ये क्या करेगा, जाहिर है ऐसा लग रहा है कि जो भी माइक्रोब्स होंगे उनको ये ख़त्म करेगा, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से तरीके से इस्तेमाल होता है। लोकल एप्लीकेशन, इसका पेस्ट बना के अगर इसके फ्लावर का इस्तेमाल किया जाए बार्ली फ्लोर के साथ, उसके आटे के साथ, जौ के आटे के साथ या गेहूं के आटे के साथ अगर आप इसका पेस्ट बना के इस्तेमाल करते हैं तो वुंड हीलिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ख़ास तौर से वो ज़ख्म जिसमें पस पड़ रहा हो तो उस पर अप्लाई कर देंगे तो गंदम की मौजूदगी की वजह से वो बिल्कुल क्लीन कर देगा, उसको साफ़ कर देगा, निकाल देगा बाहर की तरफ, अंदर रहने नहीं देगा। इसी तरह अगर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। 1.5 ग्राम बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से जो भी एबरेंट मैटर है, ख़ास तौर से हमारे वहाँ यूनानी में इसी की एक दवा है स्पेशली, उस्तुखुद्दूस कहलाती है, बहुत आपने नाम सुना होगा, इतरीफल उस्तुखुद्दूस। उसको जारूबे दिमाग कहते हैं, इसलिए कि दिमाग, जारूब के माने झाड़ू होता है, दिमाग यानी दिमाग में झाड़ू लगा देने वाला। झाड़ू घर में क्यों लगाते हो आप? घर की गंदगी को दूर करने के लिए। ऐसे ही दिमाग में जो रतूबत भरी हुई है, बहुत सारे हमारे इमोशन ऐसे होते हैं कि जो ब्रेन की तरफ जो मादे पहुंचते हैं वो निकलने का रास्ता नहीं होता, वो ब्रेन को फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी सूरत में जारूबे दिमाग यानी ये दवा जो होती है दिमाग को झाड़ू लगाने वाली, तो अगर आप इसका रेगुलर 2-3 महीना इस्तेमाल कर देते हो तो जिनको बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम, कुछ लोग होते हैं बार बार मौसम के इफ़ेक्ट से, तो आप इस्तेमाल करके देखो, फिर मौसम का इफ़ेक्ट उतना जल्दी नहीं होगा। नज़ला ज़ुकाम या इस तरह की कंडीशन फौरी तौर पे आपको नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी ऐसी पैदा हो जाएगी जो उस चीज़ को वहाँ रुकने नहीं देगी या बनने नहीं देगी। तो इस तरह की दवाएं तो बहुत सारी हैं। यहाँ मैं बताया कि ख़जाना है, ये ऐसी जगह है, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है, महदूद होता है, तो ये कुछ प्लांट थे जिनके बारे में बताना मकसद था। और